So in this lecture we prove the method of solving equations of first order and higher degree using Clairaut's form. Now let us see what is a Clairaut's equation. A differential equation of type y is equal to px plus f of p is called a Clairaut's equation. Remember what was p? P was dy by dx. So if you have equation of the type y is equal to px plus a function of p. So although this is solvable for y is on the left hand side, p and x's are on the right hand side. But this particular form where y is equal to px plus any function of p is called a Clairaut's equation. And here the solution is you simply replace p by c. So in this case the complete solution is जहाँ जहाँ पे p आ रहा है वहाँ c लिख दो. So y is equal to cx plus a function of c. This is the complete solution. So this makes solving differential equation very easy if it is of Clairaut's form. Look at this equation. Y is x y dash plus 1 upon y dash. Now remember what was y dash? Dy by dx, which is p. So my equation is y is equal to xp plus 1 upon p. So this is of the type xp plus a function of p. So the above method says that you replace simply p by c. So the solution is y is equal to replace p by c, cx plus 1 by c. So यहाँ पे आपके पास f of c नहीं आएगा, 1 by c आएगा. Look at this equation. It says solve py plus nx whole square equal to y square plus n square x square into 1 plus p square. Now at a glance you cannot make out which method is to be applied here, right? So first of all, whenever such a complicated equation is given to you, simply open the brackets. So see here, you get p square y square plus n square x square plus 2py nx. So this is on the left hand side, and the right hand side is y square into 1 y square p square n square x square plus n square x square p square. So which are the terms that they cancel out on both the sides? This n square x square gets cancelled, this y square p square gets cancelled, and now you take this py nx twice of this to the right hand side. So you get y square plus n square x square p square minus this term 2npyx equal to 0. Now see, this is a complete, so this is a square. You have of the one square plus the second square minus 2 times the mixed term. So this is nothing but y minus nxp whole square equal to 0. That means y is equal to nxp. So this is nx, what was p? Dy by dx. So this becomes very simple, and this is variable separable form. So you take y to this side, so this is 1 upon y dy. You take dx to left hand side, so this becomes 1 upon nx dx. So this is variable separable form, and then you integrate both sides. So 1 upon y integral is log y equal to 1 by n log x, and since both the terms are in log, I take log of c instead of c, and then this 1 by n, this can be written over here. So this becomes log of x to the power 1 by n plus log c, and then log a plus log b is log of ab, and then take anti-log on both the sides. So you get this answer. So यहाँ पर हमने कोई भी मेथड नहीं अप्लाई किया, सिंपली ब्रैकेट्स को ओपन करके सिंप्लीफाई किया हमने, और ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है. नेक्स्ट इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू Clairaut's form. Some of the equations by some kind of substitution become Clairaut's form, and it becomes very easy to solve them. Most of the time what we do is we substitute either small x square as capital X, small y square as capital Y, or sometimes exponential terms are substituted. So this depends upon the question also. So look at this example. It says solve xyp square minus x square plus y square minus 1 into p plus xy is 0. बुक में इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है सॉल्व दिस बाय सब्सटीट्यूटिंग x square equal to x and y square equal to y.
बट इन जनरल आपको एग्ज़ाम में ऐसे कई बार हो सकता है कि सब्सटीट्यूशन ना दियो, सो यू हैव टू think about the substitution, and that you can do by practice only. So in this case what I am doing is I am substituting x square equal to capital X, y square equal to capital Y. Now that means यहाँ जहाँ जहाँ पर स्मॉल x स्मॉल y आ रहे हैं, हमने कोशिश करनी है कैपिटल x कैपिटल y आए और स्मॉल p की जगह कैपिटल p आए, सो दैट हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल x कैपिटल y कैपिटल P वो क्लैरेट्स फॉर्म बने. सो अगर मैंने x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो 2x dx इज़ d कैपिटल x, ऐसे यहाँ पे 2y dy इज़ d कैपिटल y, राइट. सो अब ये वाली इक्वेशन देखो, एक्स वाई पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस पी प्लस एक्स वाई इज़ ज़ीरो. मैंने इसमें dy बाई डी एक्स पी की जगह dy बाई डी एक्स लिख दिया. अब हमारा पर्पस क्या है कि मैंने किसी तरह से स्मॉल p को कैपिटल P से रिप्लेस करना है. बट पहले यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल P क्या बनेगा. सो यू हैव 2x dx 2y dy डिवाइडेड बाय 2x dx इज़ d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, राइट. सो 2 कैंसिल हो गया. दैट मीन्स यू गेट y अपॉन x स्मॉल p इक्वल टू कैपिटल P. सो अब ये देखो ये कैसे यूज़ करेंगे. सो दिस वॉज द इक्वेशन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इज़ ज़ीरो. सो ये वही चीज़ रिपीट की हुई है मैंने. एक्स स्क्वायर को कैपिटल एक्स पुट करना है, वाई स्क्वायर को कैपिटल वाई करना है, और अब हमारा y अपॉन एक्स ये सब्सटीट्यूशन अभी की थी मैंने, स्मॉल p इज़ कैपिटल P. सो मैंने यहाँ देखो ये कैपिटल ये स्मॉल p है ना, सो आई हैव एक्स वाई स्मॉल p स्क्वायर. सो p स्क्वायर है, अगर यहाँ p स्क्वायर है तो मुझे किसी तरह से y स्क्वायर और x स्क्वायर चाहिए, सो दैट मैं उसकी वैल्यू कैपिटल P स्क्वायर लिख सकूँ, राइट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस टर्म में एक और x से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस x बिकम्स एक्स स्क्वायर. यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x से डिवाइड कर दिया तो y अपॉन एक्स हो गया. ठीक है, ये वाली वैल्यू है p स्क्वायर. और क्या किया है, आई मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय y अपॉन एक्स. सो इस टर्म में भी y अपॉन एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, नेक्स्ट टर्म में भी और लास्ट वाली टर्म में भी, राइट. और उसका पर्पस क्या है, देखो हमारे पास y अपॉन एक्स इंटू p कैपिटल P है और यहाँ पे मेरे पास p स्क्वायर है. तो मुझे यहाँ पे अगर p स्क्वायर लेना है तो यहाँ पे मुझे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, सो दैट मैं उसकी वैल्यू कैपिटल P स्क्वायर कर सकूँ. इसीलिए मैंने थ्रू आउट वाई अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया. एक वाई अपॉन एक्स पहले ही था, सो ये टर्म बनी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स. ये देखो ये वाई अपॉन एक्स, ये वैल्यू है P स्क्वायर एंड आई मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन एक्स माइनस विद इन द ब्रैकेट इसको ऐसे ही रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 को. और यहाँ पे y अपॉन एक्स से देखो थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया था और ये वाली वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स इज़ p. और यहाँ पर ऐसे ही x इंटू वाई को फिर से y अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई किया. और अब सिंप्लीफाई करते हैं. सो दिस इज़ स्मॉल एक्स स्क्वायर, दिस टर्म इज़ y अपॉन एक्स p होल स्क्वायर माइनस दिस टर्म इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू y अपॉन एक्स p. और यहाँ देखो एक्स एक्स कैंसिल होके वाई स्क्वायर हो गया. अब सारी वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. व्हाट इज़ माई स्मॉल एक्स स्क्वायर, कैपिटल एक्स. व्हाट इज़ y अपॉन एक्स इंटू p, कैपिटल P. सो दिस बिकम्स कैपिटल P होल स्क्वायर माइनस स्मॉल एक्स स्क्वायर इज़ कैपिटल एक्स, दिस इज़ कैपिटल Y माइनस 1 एंड दिस टर्म y अपॉन एक्स स्मॉल p इज़ कैपिटल P प्लस कैपिटल Y इक्वल टू 0. नाउ मुझे याद रखो कि हमने इसको क्लैरेट्स फॉर्म लिखनी है. दैट मीन्स y इज़ इक्वल टू पी एक्स प्लस अ फंक्शन ऑफ p बनाना है. सो इसमें से जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वो टर्म्स को मैं एक साथ कर लूँगी, राइट. तो ये वाली टर्म जो है माइनस वाई इंटू पी और एक ये y टर्म जो है ये एक साथ कर लिए मैंने यहाँ पे. सो y का कोफिशेंट क्या बन जाएगा, यहाँ से माइनस p और यहाँ से 1 और ये एक्स पी स्क्वायर, ये वाली टर्म माइनस एक्स पी और ये माइनस माइनस प्लस p, राइट. सो आई टेक दिस टर्म ऑन द राइट हैंड साइड.
So I have xp square minus xp plus p plus 1 minus py is 0. So I take this 1 minus py on the right hand side. It becomes p minus 1. नेगेटिव होगा तो मैंने साइन चेंज कर दिया. एंड नाउ रिमेंबर आई वॉन्ट अ क्लैरेट्स फॉर्म. तो मुझे y इक्वल टू समथिंग चाहिए. तो ये y का कोफिशिएंट 1 चाहिए. सो आई एम डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय p माइनस 1. सो दिस टर्म एंड ऑल्सो इन दीज टू टर्म्स आई टेक xp कॉमन. सो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा p माइनस 1. तो जब मैं p माइनस 1 से डिवाइड करूँगी तो ये p माइनस 1 कैंसिल हो गया. आई एम लेफ्ट विद xp. दिस टर्म बिकम्स p अपॉन p माइनस 1. ऑन द राइट हैंड साइड आई हैव y. So y is px plus p upon p minus 1. This is a Claret's form. So you replace p by c. So your complete solution is capital Y equal to, replace p by c, cx plus c upon c minus 1. And finally replace capital X by small x square and capital Y by small y square. So the solution here is y square equal to c x square plus c upon c minus 1.